زلزلے عرافات کیوں آتے ہیں؟ ایک ایسا راز جس کا انکشاف صدیوں بعد ہوا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جبل کاف کو دیکھا تو اس مخلوق کی عظمت کی وجہ سے حیرت زدہ ہو گئے۔ وہ عظیم پہاڑ ہے جس کی جڑیں زمین کی 7ویں تہ تک، اور اللہ عز و جل نے اس پہاڑ کی رگوں میں مختلف قسم کے پانی پیدا کیے جو سمندروں میں بہتے ہیں۔ اس کو روزانہ 10 منٹ اپنی کسی تنہائی کے اوقات میں دیکھیں، اور یہ ایک وقت آئے گا یہ کاغذ سے نکل کے آپ کے اندر اتر جائے گا۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر شہادت کی انگلی سے کوئی مشکل وقت ہو، کوئی مشکل پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو، 11 بار، 21 بار یا 40 بار لکھیں۔ اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے دل پر صرف 3 بار لکھیں۔ اب چند ہی دنوں میں دل کی دنیا کو بدلا، دل میں وسوسے، دل میں گناہ، دل میں ناپاکیوں کے کیفیتیں، خیال، سب دنیا بدل جائے گی۔ نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن آسمانی کتاب، رازوں سے بھری کتاب، شفا سے، عطا سے، برکت سے بھری کتاب۔ قرآن پاک میں جتنے بھی حروف ہیں، ہر حرف میں طاقت، تاثیر، ہر حرف میں قوت کائنات ہے۔ آئیے قرآن پاک کے ایک حرف قاف کا ایسا راز جس کا انکشاف صدیوں بعد ہوا۔ قاف جس میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں حروف کی دنیا کا ایک اہم راز آپ پر کھلے گا۔ یہ وہ دروازے جو صدیوں سے کتابوں اور سینوں میں دفن تھے، آج آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ راز حرف قاف، وہی قاف جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی۔ قاف والقرآن المجید۔ قرآن پاک میں قاف 7034 مرتبہ آیا۔ 7034 مرتبہ آیا۔ یہ قاف کیا ہے؟ اگر میں کہوں یہ حرف اپنا وجود رکھتا ہے، اس کا بھی سر ہے، چہرہ ہے، دل ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اس سے بڑی بات کہوں کہ ہماری زمین اور کائنات میں اسی قاف کے راز موجود ہیں، اور اس کے اندر کائنات ہے اور کائنات اس کے باہر ہے، اور یہ کائنات کا راز ہے، تو کیسے جانیں گے؟ کیا آپ اس قاف میں چھپے راز کو جاننا چاہتے ہیں؟ تو میرے ساتھ اس پروگرام میں آخر تک رہیے گا۔ میں وہ راز آپ کو بتاؤں گا جس میں آپ کو قاف کی حقیقت، اس میں چھپے کائنات کے راز بتاؤں گا۔ آخر میں آپ کے لیے ایک خاص تحفہ ہوگا جس سے آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ کے گمان، خیال اور تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ آئیے اس امت میں قرآن کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں کہ اس حرف میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت، اور یہ آیت ہے کہ ہم نے زمین میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے۔ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وہ عظیم پہاڑ ہے جس کی جڑیں زمین کی 7ویں تہ تک، اور اس کی اونچائی عظیم آسمان کی بلندی ہے جس کی شاخیں یا بلندیاں زمین سے اوپر ہیں۔ فرمایا اس لیے اس پہاڑ کا سر انسان کے سر جیسا ہے، اس کا چہرہ انسان کے چہرے جیسا ہے، اس کا دل اللہ جل شانہ کی معرفت، خشیت، اطاعت میں فرشتوں کے دل جیسا ہے۔ یہی مفہوم ہے اللہ جل شانہ کے اس قول کا۔ آگے قرآن پاک کی آیت قاف والقرآن المجید۔ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، پس قاف وہ پہاڑ ہے، یہی اس کا نام ہے، یہی آسمانوں اور زمینوں کے کنارے ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں سورۃ رحمان میں، اگر تم آسمانوں اور زمینوں کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ اور اللہ عز و جل نے اس پہاڑ کی رگوں میں مختلف قسم کے پانی پیدا کیے جو سمندروں میں بہتے ہیں، سفید، سبز، سیاہ، زرد، سرخ، گدلا، میٹھا یا پھر کڑوا۔ اللہ پاک کسی بستی کو زلزلے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس پہاڑ پر وہی بھیجتے ہیں کہ فلاں رگ کو حرکت دے۔ جب وہ رگ حرکت کرتی ہے تو اللہ اس بستی کو زمین میں دھنسا دیتے ہیں۔ آسمان کی رنگت اسی سے ہے، اس پہاڑ کی سبز رنگت اس مخصوص چٹان سے ہے۔ یہ سب کچھ رحمان اللہ جل شانہ نے مقرر فرمایا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام زمین کی طرف تشریف لائے۔ جب آسمان دنیا ان کے لیے کھلا تو انہوں نے زمین کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ زمین اللہ پاک کے حکم سے پہاڑوں کے ذریعے سکون و ثبات پا چکی ہے۔ اس میں اللہ پاک کی عظمت جلوہ گر ہے،
और वहीं रुक गए और ताज्जुब से देखने लगे। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जबल काफ को देखा तो इस मखलूक की अजमत, उसके खूबसूरत रंग की वजह से हैरत ज़दा हो गए। उन्होंने फरमाया, यकीनन यह मखलूक रहमान ने आज ही रात ही पैदा फरमाई है। जब वो उसके करीब पहुंचे तो अजीब व गरीब मखलूक को देखा जो निहायत शफाफ, रंगत में हसीन, उसकी जड़ें ज़मीन में फैली हुई थीं, खुश्की और समंदर के दरमियान में उसकी चोटियां हवा में बुलंद थीं। हज़रत जिब्रील उसकी अजमत, रंगों की खूबसूरती और ज़मीन के इस ठहराव पर ताज्जुब करने लगे। फिर उन्होंने जबल कौफ की तरफ देखा और उसे थामा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, ये क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया, जिब्रील, ये पहाड़ है। अर्ज़ किया, ए मेरे रब, पहाड़ क्या चीज़ है? अल्लाह पाक ने फरमाया, पत्थर है। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, क्या ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो पत्थर से ज़्यादा ताकतवर हो? फरमाया, हाँ, लोहा, जो पत्थर को काट देता है। अर्ज़ किया, लोहे से ज़्यादा ताकतवर? फरमाया, आग, जो लोहे को पिघला देती है। पूछा, आग से भी कुछ ज़्यादा ताकतवर? फरमाया, पानी, जो आग को बुझा देता है। पूछा, पानी से भी ज़्यादा ताकतवर? फरमाया, हवा, जो पानी को बिखेर देती है, उसके बहाव को रोक देती है। पूछा कि ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो हवा से भी ताकतवर होगी? फरमाया, हाँ, इब्ने आदम, इंसान, जो इन सब को अपने काबू में ले लेगा। अल्लाह अकबर। बस हजरत जिब्राइल सजदे में गिर गए। तवील सजदा, गिरिया जारी, अल्लाह की हम्द व सना करते रहे। फिर अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं तो ये गुमान भी ना कर सकता था कि तू मुझसे ज़्यादा ताकतवर मखलूक भी पैदा कर देगा। मैं तो समझता था शायद मैं ही ताकतवर हूँ। तब अल्लाह पाक ने उनकी तरफ वही भेजी, ए जिब्रील, तुमने मेरी कुदरत को अभी थोड़ा सा हिस्सा देखा है। ये तुम मेरी शान को मुकम्मल तौर पर जान नहीं सके, ना मेरी कुदरत के समंदर की गहराइयों को समझ सके। मेरी कुदरत एक ऐसा बहरे बेकरां है जिसके ना किनारे मालूम हो सकते हैं, ना उसकी गहराई की किसी रस्सी को कोई नाप सकता है। जबरील ने अर्ज किया, ऐसा ही है ए मेरे रब, तो सबसे ज्यादा कादिर और अजीम है। फिर सातवें आसमान की तरफ वापस लौटे। उसकी गर्दन अजीम मखलूक और हैरत अंग अजायबात को देखकर झुकी हुई थी, यहाँ तक कि वह सातों आसमान पर अपनी इबादत की जगह पर जाकर खड़े हो गए। और उसकी तरफ अल्लाह का यह फरमान है कि हमने ज़मीन को फैलाया और मजबूत बनाया। और अगला फरमान कि उसने ज़मीन में पहाड़ गाड़ दिए हैं ताकि वह तुम्हें लेकर लरजने न लगें। ये बहुत बड़े इसके हवाला जात हैं और इसकी बहुत बड़ी हैरत अंगेज। आपने देखा कि काफ कायनात का कितना बड़ा राज है। यह कायनात हमारी सोचों से ज़्यादा वसी है, हमारी सोच से ज़्यादा इसमें मखलूक़ात पाई जाती हैं जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, उन्हें जिनको वह इल्म में से हिस्सा अता फरमाए। साइंस कहती है हम कायनात का सिर्फ 5% हिस्सा अपनी आंखों से देख पाए हैं, बाकी 95% कायनात में क्या है वो हमसे पोशीदा है, हम नहीं जानते, वो सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। लेकिन एक इल्म जो हमें कायनात के इन राजों के बारे में बता सकता है जो हमें कभी साइंस नहीं बता सकती, वो इल्म वही का इल्म है, कुरान का, हदीस का, जिसने हमें कौफ के बारे में बताया, उसकी अजमत और अहमियत के बारे में बताया। आए हम भी कौफ के कुछ फ़ायदे हासिल करें। अल्लाह ने जो इसमें खैरें रखी हैं उनमें से हम भी कोई हिस्सा लें। आपको एक ख़ास अमल देता हूँ जिसको करने से रूहानियत में अरूज व कमाल होगा। नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह जल्ल शानु अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएगा। नंबर 3, कश्फ और लदुनी दुनिया नसीब हो जाएगी। नंबर 4, आफात मुसीबतें नहीं आएंगी। नंबर 5, दिल जिंदा और रोशन होगा। नंबर 6, इज्जत और शान शौकत मिलेगी। नंबर 7, अल्लाह आपको अपना ज़ाती घर अता फरमाएगा। नंबर 8, आपके इर्द गिर्द हिफाजत के पहाड़ होंगे। नंबर 9, अल्लाह आपको पहाड़ की तरह इस्तिकामत देगा। नंबर 10, अल्लाह आपको अपने शोबे, इम्तहान, मकसद, कारोबार में तरक्की अता फरमाएगा। अब एक तरीका गौर से सुनिए। एक सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से कौफ लिखें। इसको रोज़ाना 10 मिनट अपनी किसी तन्हाई की औकात में देखें। बस एक लिखना है, एक दफ़ा कौफ। फिर तन्हाई की औकात में इसको 10 मिनट देखना है और देखते हुए कौफ 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 का तसव्वुर करना है और पढ़ना है और यह दिल पे नक्श हो जाएगा। सिर्फ देखना है।
देखना है 10 मिनट और दिल ही दिल में कॉफ कॉफ पढ़ना है। और ये एक वक्त आएगा, ये कागज से निकल के आपके अंदर उतर जाएगा। और अल्लाह ने जो राज, नेमतें और बरकतें, खैरें इस लफ्ज़ में रखी हैं वो आपको मिल जाएंगी। ये अमल चंद दिन चंद हफ्ते करें, बहुत ताकतवर अमल है और बहुत कुव्वत का अमल है। आप इसको देखें, सिर्फ देखें, कॉफ को लिख लें और कॉफ को पढ़ते हुए अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात, अपनी उलझनें, अपनी परेशानियों का तस्वर करें। सिर्फ इसको देखें, इस हर्फ को देखेंगे, आपको इसको देखते ही, कुरान का हर्फ है, इसका देखना सवाब, इसका पढ़ना सवाब, हर्फ के बदले कितनी नेकियां मिलती हैं, इसमें ताकत और तासीर है। एक और अमल भी आपको बताना चाहूँगा। अपने हाथ की हथेली पर शहादत की उंगली से, अपने हाथ की हथेली पर शहादत की उंगली से कोई मुश्किल वक्त हो, कोई मुश्किल परेशानी हो, कोई उलझन हो, सिर्फ कॉफ लिखें। 11 बार, 21 बार या 40 बार कॉफ 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 लिखें और अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी का तस्वर करें और साथ साथ पढ़ें, मुश्किल का तस्वर करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी मुश्किल, आपकी परेशानी ख़त्म होगी। ये दिन में वक्तन फ़वक्तन चंद बार भी कर सकते हैं। और एक और अमल भी इसका है, अपनी शहादत की उंगली से अपने दिल पर सिर्फ 3 बार काफ लिखें, 3 बार काफ लिखें। ये देखें, मैं लिख रहा हूं, 3 बार काफ लिखें। अब चंद ही दिनों में दिल की दुनिया को बदला, नूर, सुकून, टेंशनें, बीमारियां, दुख, तकलीफें, हादसे, दिल में वसवसे, दिल में गुनाह, दिल में नापाकियों के कैफियतें, ख्याल, सब आप, दुनिया बदल जाएगी। निकले जो मैं कदे से दुनिया बदल गई। काफ को संभाल के रखिएगा। ये कुरान का हर्फ है और इसके अंदर ताकत भी है, तासीर भी है। और हदीस में इसके हैरत अंगेज कमालात, किताबों में इसके हैरत अंगेज मवाद और बहुत तजर्बात शामिल हुए हैं। आए हम भी उन तजर्बात में से हिस्सा ले लें। यकीन वाले को मिलता है, आप यकीनन यकीन वाले हैं। एतमाद करने वाले को मिलता है, आप एतमाद करने वाले हैं। ज़रूर एतमाद कीजिएगा, ज़रूर यकीन कीजिएगा। अपनी रूहानी दुनिया और जिस्मानी दुनिया का खूब ख्याल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।